हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं जी विराट कोहली की स्पीच जो कि वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने की और क्रेजी क्राउड था वहां पर। और देखें भी बिल्कुल जी, ये तो छोड़ने वाली बनती नहीं है। तो चलें जी, देखते हैं भाई साहब। Please welcome number 18. नंबर 18 विराट कोहली। किंग कोहली लेजेंड भी कह सकते हैं इसको। How heady and crazy have these last 4 days been? जब बात भी नहीं करने दे रहे, इतना क्राउड है। कोहली Firstly, a big thank you to all the people up in the stadium, and what we saw on the streets tonight is something I'm never going to forget in my life. Sorry, what was the question? That's the last 4 hours. I asked about the last 4 days. 4 days have been a roller coaster of a ride, honestly. We won the world. We wanted to get out of Barbados as soon as possible, get back to India, celebrate with everyone. Got stuck in a hurricane, bit of a climax feeling, but since we came back, what has happened has been phenomenal. As truly special. I'm sure, like every stadium, at one point we also felt like, man, is it going to slip away again? And then what happened in those last 5 overs was truly special. It was इंडिया अनबीटन रही है ना, एक भी मैच नहीं आ रहे। एक भी मैच नहीं है। what I would like everyone to do is to applaud a guy who brought us back into games again and again and again in this tournament, and what he did. What he did in those last 5 overs. This man. Bowling those last 5. It was phenomenal. A huge round of applause to Jasprit Bumrah, please. ये बंदा था ये। बुमराह And yeah, man, after the game I knew this was it. That was the moment. Time to step away, let the young lord come through and take the Indian flag forward. Just on a side note, I'm thinking of starting a petition to call Jasprit Bumrah a national treasure and the 8th wonder of the world. Will you be the first person to sign it? You should do that. I'll sign the petition now. Let him decide what he wants to do with his schedule. We want him to play as long as possible. He's a once-in-a-generation bowler, and we're so glad that he plays for us. जनरेशन बॉलर। This ground, 2nd of April 2011. You remember that day. And then today, this ground, this crowd, always giving special memories with World Cups. It's amazing. I remember when I won that World Cup, you asked Rohit the question as well, when he won the first World Cup that he was part of. Honestly, I could not connect with the emotions of the senior players at that point of time. I was like, I don't understand why they're crying. For me, it felt like, yeah, we won the World Cup. It's as easy as that. I was 22, 23. But now, it is a different feeling. I remember I'm saying something about Sachin Paji when we won that World Cup, that he's carried the burden for so long. It's time we carried him on our shoulders. And now, to be in this position, not just me, Rohit's played for so long as well. We both have been trying this for so long, trying our hardest. When I was captain, he was a senior player in the team. Now he's captain. I'm one of the senior players in the team. The only aim was to win India a World Cup. So I hope that we have carried that burden to an extent.
and given the results that the country wanted us to provide to them, and no better place to come back. The last time we won here, it was Wankhede. Bringing the trophy back here is a truly special feeling. And it is because this is a very, very special stadium, and I absolutely love playing here and love the crowds here as well. I mean, the both of you, the senior most members of the team, you know you both broke the internet with that picture of the flag across your shoulders. Are you aware of how much you have broken the internet with that one picture, the two of you? I don't know about breaking the internet, but this is the first time in, 15 years of playing together that I've seen Rohit show so much emotion on the field. When I was walking up the steps, I was crying, he was crying, and we hugged. For me, that's going to be a very special memory from that day. Because all said and done after so many years, the only goal is this. The only goal is Indian cricket and the Indian flag. And that's what we take pride in. It is so amazing to see, especially the two of you, him winning in 2007, you winning in 2011. As young lads, I've known you as young lads. I know you now as family men and adorable fathers. To see that journey with the two of you, the fact that you've carried the hopes and dreams of 1.5+ billion Indians and taken us to this trophy, I thank you on behalf of all of them. Thank you so much, Virat. Thank you, guys. ओके तो ये थी जी स्पीच किंग Thankful कोहली speech. विराट कोहली की इमोशनल और काफ़ी बढ़िया उन्होंने। अच्छा एक चीज़ है कि वाकई यार इंडिया की टीम का एक लेवल है बिल्कुल लेवल है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि जो कि नेशन एक्सपेक्ट कर रही थी और हम भी जाए कि ये वर्ल्ड कप जीत कर उनको एक तोहफा देना, उनके लिए जीतना, मतलब एक वाकई दिया उन्होंने अपनी वाम को और तोहफा। देख लो यार इतनी बड़ी खुशी, और फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा कहते दोनों हम रोने लग गए। ठीक हाँ, है, ज़ाहिर एक है। दूसरे के साथ hug किया, ठीक है, बट यार वो फीलिंग्स कैसी हुई कि जीत की खुशी में आंसू निकले। वो खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू भी वो होते हैं खुशी के आंसू ना होते हैं। जो अब हार्दिक पांड्या एंड में थोड़ा रोया पूरे ग्राउंड के अंदर। लेकिन एक चीज़ है कि पूरा वर्ल्ड कप अगर उठाकर देखें तो इंडिया की टीम जो है वो बैलेंस टीम थी बिल्कुल और बिल्कुल। स्पेशली जसप्रीत बुमराह, उसके ऊपर जितनी उसकी तारीफ की जाए ना, वो अगर काम है। इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है तो उसका क्रेडिट जो है वो प्ले बैटर्स को तो जाता ही जाता है, लेकिन बुमराह को जसप्रीत जाता है। बुमराह जसप्रीत हाँ, बुमराह बिल्कुल। अब लाइक लास्ट मैच फाइनल मैच में लाइक जैसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग में एरो ऊपर जाता है और एकदम नीचे गिर जाता है, ऐसे लाइक इंडिया का एरो एक दफा नीचे गिरा था। ये था कि हम अपनी ऐप्स पर जो है वो मैच जो है वो देख रहे थे क्योंकि हम ट्रैवलिंग में थे तब, बल्कि रात के टाइम हम जब ये इंडिया का फाइनल था हम वो उधर थे कुटन में थे और वहाँ पर इंटरनेट जो है वो इतना स्लो चल रहा था कि जस्ट हम टीवी तो ओपन दूर की बात स्कोर देख रहे थे। है, हम स्कोर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हमें ये पता लग रहा था कि अब इतना ये खेल रहा है और ये खेल रहा है, तो ऐप्स पर सिर्फ स्कोर देख रहे थे और उस वक्त हम कंफर्म करके कि यार इंडिया जीत चुका है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि जब हमने दोबारा चेक किया तो हमने देखा कि यार साउथ अफ्रीका तो मैच जो है वो ले गया। 27 पर 27 जब आप नीचे से ऊपर आए हो आपने कहा यार 27 पर 27 चाहिए साउथ अफ्रीका को, 4 आउट हैं उनके। तो मैंने कहा मैच तो यार वो तो गया इंडिया के हाथ से, मैच तो ख़त्म हो गया, साउथ अफ्रीका तो ले गया मैच। तो थोड़ी देर बाद हमने वो डिनर भी करना था तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे, तो हमने कहा यार हम डिनर कर रहे थे और डिनर से ज़्यादा हमारी जो नज़र थी वो मैच के ऊपर थी कि स्कोर बोर्ड जो भी खाना खा रहा था साथ यही पूछ रहा था स्कोर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब विकेटें जाना शुरू हुई क्लासन आउट हुआ और हमने कहा कि भाई ये अब मैच फंस गया, अब जा रहा है ऊपर जा रहा है। और एक टाइम ऐसा कि हमने कहा कि नहीं अब इंडिया ले गया मैच, अब साउथ अफ्रीका की मतलब रह गया था ना तभी हमें लगा था प्रोग्राम बढ़ गया। हमने कहा अब इंडिया से यहाँ से साउथ अफ्रीका जो है वो चेस कर जाएगा। 27 बालों पर 27 और 4 विकेटें हैं सिर्फ डाउन,
साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल पहली दफा फाइनल में आया, गुड अचीवमेंट किया पहली दफा मेरे ख्याल फाइनल में साउथ आया था। अफ्रीका फर्स्ट टाइम। First time आया था और final ये में। दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका भी कोई मैच नहीं हारी और फाइनल तक जो है वो उन्होंने कोई जीतते आए हैं, सारे मैच जीते उन्होंने। और इंडिया भी, ये दोनों वाहद ऐसी टीमें थी जिन्होंने अपने सारे मैच जीते हुए थे। और फाइनल जो है अब एक टीम ने तो हारना था, टक्कर का मैच लेकिन मैच अच्छा हुआ। मैच ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड नहीं, one हुआ। sided तो फाइनल जो है वो बहुत मजे का हुआ है। मतलब आप एंड तक आखिरी ओवर्स में जाके साउथ अफ्रीका के जबड़ों से जो है इंडिया ने मैच जीता वापस फुली निकाला। फाइट फुली मैच था। बिल्कुल पर ऐसा मैच देखने का मजा भी आता है। मजा आता है, लेकिन हमने वो मिस किया। फिर बाद में जब इंटरनेट की एक्सेस हमारे पास आई, फिर हाइलाइट्स हमने देखे कि ज्यादा यार मजा अब दोबारा देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, किस तरीके के क्या इमोशंस थे उस टाइम। लेकिन ये था कि मैच बहुत ही मज़े का और कांटे की टक्कर थी। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन टीम को, पूरे इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्म किया, खेला, बहुत ही बढ़िया खेले हैं और डिज़र्व करते थे जीतना। और वही टीम जो डिज़र्व करती थी वही जीती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।